Equistum. Okay, so equisetum is the member of Sphenopsida. कल हमने Selaginella पढ़ा था, and today we will study about the equisetum. And one of the name of the equisetum is also horsetail. इसका एक जो general name है, that is a horsetail due to appearance of this sporophyte. इसका जो sporophyte है उसका जो appearance है that resembles horsetail. That's why it is known as a horsetail. So you can see here, ये आपको ये इसकी plant body है, and इसका you can see in the sporophyte that there is a node and internode region. आप ये देखो, ये जो joints दिख रही हैं आपको, this is the nodal region, and between this nodal region there is a internode. This is the node and this is the internode. है ना, समझ रहे हो? This joint जहां से ये branches निकल रही हैं, these branches are coming out, this portion is the node. आप किसी भी प्लांट में स्टेम में देखते हो ना, बीच बीच में उसमें नोड्स होती हैं जहां से ब्रांचेस निकलती हैं. सो यहाँ पे इन केस ऑफ Equisetum you can see that on the stem there is a presence of node and internode. जो बीच में joints हैं जहां से branches emerge हो रहे हैं, that portion is the node, and in between two nodes the space is called internode. ये portion जो है, this portion is the internode. And this brown scaly structure here, what you can see, ये scaly structure देख रहा है brownish सा node पे. Can you see this structure? This brown is जिस पे ये arrow show हो रहा है. Can you see this structure? जिस पे ये white arrow मैं rotate move कर रही हूँ. This portion is the leaf. ये portion जो है, this is the leaf. This is the small scaly leaf present at the node. ये इसका leaf है, इसमें leaf बहुत ही reduced है, and it is a very scaly kind of leaf. is बिल्कुल minute सी leaf है, and they are isophilous, means identical size के हैं. And ये जो आपको ये दिख रहे हैं green growth, these are the branches. ये branches emerge हो रहे हैं. ये क्या है? ये branches emerge हो रहे हैं. ठीक है, तो अब इसमें आप ये देखो, ये इसका ये पोर्शन ऐसे दिख रहा है, ये जो बड़े बड़े से आपको दिख रहे हैं निकले हुए, these are the branches. और टॉप पे, बिल्कुल एकदम टॉप पे, you can see the cone or strobilus. cone और strobilus जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा? Sporangiophore and sporangium. Okay, so there are basically two kind of shoots. One is the vegetative shoot and another one is a reproductive shoot. तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव शूट से मतलब, ये नाम से तो यही लग रहा है कि जो वेजिटेटिव शूट होगा उसका जो रोल है, उसका रिप्रोडक्शन में रोल नहीं होगा, एंड द रिप्रोडक्टिव शूट मस्ट हैव रोल इन द रिप्रोडक्शन. तो जो वेजिटेटिव शूट होता है उसमें क्या होता है, दे हैव फोटोसिंथेटिक फंक्शन. उनका काम मेनली फोटोसिंथेसिस करना होता है. दे कंटेन लॉट ऑफ क्लोरोफिल. और जो रिप्रोडक्टिव शूट होते हैं, रिप्रोडक्टिव शूट में उसके टॉप पे स्ट्रोबिलस पाया जाता है, कोन पाया जाता है, स्पोरेंजियम एंड स्पोर्स पाए जाते हैं, एंड उनका रोल होता है फर्टिलिटी में. क्योंकि स्पोरेंजियम में क्या बनेगा? स्पोर बनेगा, एंड दैट विल स्पोर विल गिव राइज टू मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट. एज you all have seen in the case of Selaginella. Selaginella के केस में आपने देखा था कि there are two kind of spores, microspores and megaspore. Micro small, mega big. Micro give rise to male gametophyte and mega give rise to female gametophyte. But in case of Equisetum, there is no heterospory. यहाँ पे heterospory नहीं होती है. All the spores are of same size. They are identical. Homosporous. ठीक है, and some of them give rise to male gametophyte and some of them give rise to female gametophyte. उनका fate उनके बनने के बाद ही decide होता है. There is no differentiation between the male on the microspore और megaspore type. ऐसा कुछ नहीं होता वहां पे. All spores are of identical size. So what are the ये इसकी एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है. और ये जो इसका जो स्टेम होता है, दैट इज हॉलो काइंड ऑफ. हॉलो का मतलब होता है जब सेंटर वो सॉलिड ना हो और उसके अंदर गैप हो, दैट मींस दैट इज अ हॉलो.
एंड उसको टच करेंगे तो दैट विल बी वेरी रफ काइंड ऑफ अपीयरेंस होता है, क्योंकि उसके ऊपर सिलिका का डिपोजिशन होता है। दैट्स व्हाई इट्स छूने पे वो बिल्कुल आपको रफ लगेगा। सो इट इज अबाउट दैट। और इसमें राइजोम जैसे आई विल शो यू प्लांट बॉडी, यहाँ पे आप इसकी प्लांट बॉडी देखिए। दिस इज द स्ट्रोबिलस दैट आई टोल्ड यू, ये स्ट्रोबिलस है, दीज आर द ब्रांचेस एंड ये लीव्स हैं जो ब्राउन मैंने आपको बताया था, ये नोड है, ये बीच का पोर्शन इंटर नोड है, एंड दिस इज द राइजोम। राइजोम क्या है? हॉरिजॉन्टल स्टेम। राइजोम क्या होता है? हॉरिजॉन्टल स्टेम जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। एंड ये ऊपर का पोर्शन, दिस इज द एरियल शूट, ये एरियल शूट है, और ये नीचे का हॉरिजॉन्टल स्टेम है, और उससे नीचे की ओर रूट्स निकले हुए हैं। तो आई थिंक यू ऑल आपका ये जो मॉर्फोलॉजी है ये क्लियर हो गया है आप सभी का अबाउट द मॉर्फोलॉजी। एंड नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द एनाटॉमी। इसकी एनाटॉमी कैसी है, तो लेट मी टेल यू अबाउट, शो यू अबाउट द एनाटॉमी। ये स्टेम की एनाटॉमी है, ठीक है। अब हम जब स्टेम का सेक्शन कट करेंगे तो क्या देखेंगे? देखो एक चीज तो ये क्लियर है कि whenever we will cut the section, we will see the three regions, epidermal region, cortical region, and vascular bundle region. We are going to see dermal region, cortical region, and the central stele. One thing is a common, but उसका pattern कैसा है we have to see. तो जब हम स्टेम का इसके सेक्शन काटेंगे तो हम इस तरीके के रीजेस एंड फरोज देखेंगे। ये जो उभार है इसमें, दैट ये जो ये ऊपर सा ये बना हुआ है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड रिज, और ये नीचे फरोज, रिज एंड फरोज। तो इसका जो अपीयरेंस है, इट्स नॉट अ स्मूथ सर्कुलर, इट्स काइंड ऑफ अप एंड डाउन वेवी आउटलाइन। इट हैज अ वेवी आउटलाइन विद अ रीजेस एंड फरो, ठीक है। और हर रिच के नीचे यू कैन सी देयर इज अ क्लोरोफिलस टिश्यू, एंड आफ्टर दैट दिस इज द एपिडर्मिस जो है, दैट इज अ वेवी आउटलाइन, एंड आफ्टर एपिडर्मिस देयर इज अ कॉर्टिकल रीजन। ये जो ब्राउनिश रस्टी कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस पोर्शन इज द कॉर्टिकल रीजन। अब सेक्शन कट करोगे तो वो रस्टी नहीं दिखेगा, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जब यू आप सेक्शन कट करोगे तो यू विल stain with that saffronine and fast green, and then you will be able to see the tissue. जब प्रैक्टिकल होगा क्लास में तो आप इसका सेक्शन कट करके देखोगे। अभी आप समझ लो कि what you are going to see in the section of stem. तो दिस पोर्शन इज अ कॉर्टेक्स, और आप कॉर्टेक्स में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, दैट इज कॉल्ड वेलिकुलर कैनाल। एक ऐसे स्फेरिकल कैविटी, और ये जो वेलिकुलर कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज प्रेजेंट बिलो इच यू नो बिलो इच फरो। हर फरो के नीचे आपको ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, देखो ये है ना, हर ये फरो है, दिस फरो के नीचे, हर फरो के नीचे ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड वेलिकुलर कैनाल। इसको नोट कर लो, ये एग्जाम में बहुत आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है, एमएससी का एंट्रेंस दोगे वहां भी आएगा, बिकॉज इट्स अ यूनिक feature of the equisetum, the presence of velicular canal, deposition of silica. So note down that, and moreover it is also called horsetail. So these 3-4 questions are 1 number marks question for the objective. So ये इसमें क्या है, इसमें ये इसका वेलिकुलर कैनाल है, and after that there is a vascular bundle. ये आपका vascular bundle आ गया। In the vascular bundle also There are not a single bundle. Vascular bundle में केवल एक ऐसा सिंपल बंडल नहीं है कि एक पूरा जाइलम अंदर की और बाहर के फ्लो में। You can see there are several bundle, छोटे छोटे कई सारे बंडल बने हुए हैं, और ये अल्टरनेट वेलिकुलर कैनाल के अल्टरनेटली प्रेजेंट है। एंड इफ यू विल सी, इट्स each vascular bundle is present below a ridge. हर रिज के नीचे क्या प्रेजेंट है? वेस्कुलर बंडल। यू सी दिस इज द रिज एंड दिस इज द वेस्कुलर बंडल, बट इट इज प्रेजेंट अल्टरनेटली। देखो अल्टरनेट है, पहले वेलिकुलर कैनाल फिर वेस्कुलर बंडल, ये उसके बाद देयर इज अ सेंट्रल पिथ कैविटी। सो ये अब जैसे वेलिकुलर कैनाल का क्या रोल होगा? वेलिकुलर कैनाल इज दैट्स अ हॉलो स्ट्रक्चर। अभी इसी की वजह से जो स्टेम होता है वो इसका ये हॉलो होता है। तो वेलिकुलर कैनाल बेसिकली उसको बायोन्सी प्रोवाइड करता है, बिकॉज ये प्लांट जो है नॉर्मली ऐसे प्लेसेस पे पाया जाता है जहाँ थोड़ा मॉइस्चर होता है,
तो ऐसे प्लेसेस पे वो उसको बायोंसी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड दिस इज द पिग कैविटी। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। एनी डाउट? नो मैम। ओके, वन मोर थिंग। एक तो आपने वेलिकुलर कैनाल देखा, सेकेंड थिंग इज दैट दिस इज द वेस्कुलर बंडल। इन वेस्कुलर बंडल में द आउटर पोर्शन इज द फ्लोएम एंड बिलो पोर्शन इज द जाइलम। एंड जाइलम में you can see one canal, carinal canal। तो ये भी आप नोट कर लेना, वेलिकुलर कैनाल एंड कैरिनल कैनाल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इक्विसिटम। कैरिनल कैनाल, ये कैरिनल कैनाल कहाँ पे पाया जाता है? इन द जाइलम पोर्शन, है ना। एंड मोस्ट ऑफ द पोर्शन इसमें क्या है? वो मेटाजाइलम का है, प्रोटोजाइलम का केवल बहुत थोड़ा पोर्शन है। तो ये कैरिनल कैनाल है। तो ले दे के ये जितने कैनाल्स हैं इनका काम होता है इनको बायोन्सी प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो याद रखना वेलिकुलर कैनाल एंड कैरिनल। तो सिमिलरली जब आप लैब में सेक्शन कट करोगे और आपका सेक्शन बहुत अच्छा कटेगा तो आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा। वही जो मैं अभी समझा रही थी, ये लैब में किए गए सेक्शन का फोटो है। जो हम लैब में जब सेक्शन करके सेफेनिन और फास्टडीन से करेंगे तो विल सी लाइक दिस, इस तरीके से। ये देखो, ये जो छोटे छोटे गैप्स दिख रहे हैं ना, ये कैरिनल कैनाल है। दिस इज द वेलिकुलर कैनाल। इज दैट क्लियर? नाउ रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है? इसमें रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ स्पोर। और स्पोर कहाँ बनते हैं? स्पोर्स आर फाउंड इन अ स्पोरेंजियम एंड दैट स्पोरेंजियम इज प्रेजेंट ऑन द स्पोरेंजियोफोर। वो स्पोरेंजियम कहाँ पाए जाते हैं? स्पोरेंजियोफोर के ऊपर। जैसे ये क्या है? दिस पोर्शन इज अ कोन, और ये कंप्लीट पोर्शन इज अ कोन और स्ट्रॉबुलस। ये एक पोर्शन अगर आप देखिए जो ये आपको डार्क कलर का ब्राउनिश ब्लैकिश सा दिख रहा है, इसके ये नीचे नीचे क्या लगे हुए हैं? दीज आर द स्पोरेंजियम। और ये क्या है? ये दिस इज द स्पोरेंजियोफोर। तो कई सारे स्पोरेंजियोफोर्स लगे हैं। ये आप देखो, दिस इज द यू नो योर कोन और स्ट्रॉबुलस। ये एक्सिस है और इस एक्सिस पे इसमें सेंटर में एक्सिस लगा है। जैसे किसी ने कोई फ्रूट्स, मलबेरी फ्रूट आप देखते हो, एक उसकी एक्सिस होती है और उस पे बहुत सारे फ्रूट्स लगे होते हैं। तो इसमें जो लगे हुए हैं डिफरेंट, दिस आर द डिफरेंट स्पोरेंजियोफोर। और उस स्पोरेंजियोफोर में नीचे की ओर स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो रहा है और स्पोरेंजियम में स्पोर बन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर, दिस इज द स्पोरेंजियोफोर और ये नीचे कई सारे इसमें स्पोरेंजियम ऐसे लगे हुए हैं। तो देखो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है ना, कुछ अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर है इसका। यहाँ देखो ये जो ऑरेंजिस सा दिख रहा है ना, छतरी की तरह जो है ये नीचे की ओर लटका हुआ है और इसके अंदर स्पोरेंजियम बन रहा है और इसमें स्पोर्स है। अब जो इसमें स्पोर्स बनेंगे बेटा, ये देखो ये इसका स्पोर्स है। ये स्पोर बिल्कुल रैप है, ऐसा लग रहा है कि किसी रस्सी या धागे से रैप है। तो ये जो रैप है इसमें, ये किससे रैप्ड होता है? इलेटर से। तो अभी इससे पहले हम इलेटर्स कहाँ पढ़ रहे थे? हम मार्केंशिया पढ़े थे, तो वहां इलेटर्स पढ़े थे। एंथोसेरॉस में भी हमने सूडो इलेटर पढ़ा था। तो यहाँ पे भी इलेटर का फॉर्मेशन होता है। दैट इज ऑल्सो वेरी यूनिक, क्योंकि आपको इस सिस्टम में ही इलेटर दिखेगा टेरिडोफाइट्स में, और आई डोंट थिंक कि आपको किसी में मिलेगा। तो ये आप याद रखना कि जो इसका स्पोर होता है वो इलेटर से कवर्ड होता है। और जब स्पोर के जर्मिनेशन का टाइम आता है तो ये लेटर्स अनकवर्ड होते हैं और स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाता है? मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। उसी गैमेटोफाइट का ही नाम प्रोथैलस भी होता है। कहीं कहीं आप पढ़ोगे मेल एंड फीमेल प्रोथैलस। जैसे ये देखो, ये इसकी लाइफ साइकिल है। ये देखिए इसका स्ट्रॉबुलस है, कोन और स्ट्रॉबुलस, ये एक्सिस है। और इस एक्सिस पे डिफरेंट स्पोरेंजियोफोर्स कैसे लगे हैं साइड बाय साइड, दिख रहा है? समझ में आ रहा है? दिस इज द एक्सिस और डिफरेंट स्पोरेंजियोफोर इसके साइड में लगे हुए हैं। और ये स्पोरेंजियोफोर से स्पोर्स निकलेगा, स्पोर जर्मिनेट करेगा एंड इट विल मेक अ गैमेटोफाइट। देखो यहाँ नीचे राइजोइड बन रहा है गैमेटोफाइट में। और अब इसके अंदर क्या बनेगा? जब गैमेटोफाइट बन जाएगा उसमें बनेगा एंथेरिडियम एंड
आर्शीगोनियम। गैमेटोफाइट के ऊपर अलग से मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट नहीं लिखा है, क्योंकि पहले से डिसाइड ही नहीं है ना। जैसे जब स्पोर माइक्रो और मेगा होता तब पता चलता कि ये मेल बन रहा है फीमेल, लेकिन जब स्पोर एक जैसा ही है, इन स्पोर इज आइडेंटिकल, इट्स अ होमोस्पोरस, देन हाउ कैन वी नो दैट इट इज गोइंग टू बी मेल और इट इज गोइंग टू बी फीमेल? इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो अब जब इसके अंदर एंथेरिडियम और आर्शीगोनियम बनेगा, आर्शीगोनियम फ्लास्क सेप्टिक स्ट्रक्चर है एंड एंथेरिडियम इज योर oval shaped structure covered with sterile cavity. अब इसके अंदर आर्शीगोनियम के अंदर एग बनेगा और सेम स्टोरी इज गोइंग टू बी रिपीटेड, नथिंग लाइक कि आपको इसमें यस ये याद करना है, बार बार एंथेरिडियम और आर्शीगोनियम याद करो। वंस यू विल नो, आपको जस्ट कुछ स्पेशल चीजें होती हैं, जैसे आर्शीगोनियम में, ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में, जैसे ब्रायोफाइट में वेंटर कैनाल सेल सिंगल होता है, लेकिन टेरिडोफाइट पढ़ोगे तो उसमें वेंटर कैनाल सेल 2 से 3 होंगे या 4 होंगे। तो यू हैव टू जस्ट नो दैट कि अगर ऐसा है, और मोर ओवर आपको डेवलपमेंटल डिटेल्स तो पढ़ने नहीं, तो लेदर के मैं जितना पढ़ा रही हूँ, यू हैव टू प्रिपेयर दैट ओनली एंड यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स। अगर इतना बना दिए तुम डायग्राम और सब कुछ लिख दिए तो आपको बहुत अच्छा होगा पेपर। जस्ट कीप स्टडी। ओके, तो यहाँ से एग और स्पर्म फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, और वो जाइगोट फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट इनटू द स्पोरोफाइट, फिर से स्पोरोफाइट बनेगा। तो ये आप देख लो, ये जाइगोट है, जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है एंड दैट एम्ब्रियो इज गोइंग टू जर्मिनेट इनटू द स्पोरोफाइट। देखो ये शूट, एपेक्स, लीफ है ना, तो वो जैसे डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट हो रहा है और फिर पूरा स्पोरोफाइट बन जाएगा। So is there any doubt in this equisystem? कोई doubt है? No, ma'am. I think everything must be clear. लीफ देखो इसमें बहुत स्केली माइन्यूट है ना। जैसे आप सिलेजिनेला में हम पढ़ रहे थे, वहां डॉर्सल लीफ, वेंट्रल लीफ थी, लीफ का भी सेक्शन हम पढ़े थे। यहाँ तो इतनी माइन्यूट सी लीफ है, इसका क्या सेक्शन पढ़ोगे? तो इसमें बेसिकली इसके स्टेम की आउटलाइन, और आप अपने प्रैक्टिकल की फाइल में भी यू आर गोइंग टू मेक दिस डायग्राम, ये वाला डायग्राम आप बनाओगे, ये बनाओगे, एक ये बनाओगे है ना, सेक्शन ऑफ स्टेम बनाओगे, और एक आप ये बनाओगे एलएस ऑफ स्ट्रोबिलस, longitudinal section of strobilus. Let me show you the diagram, which one you are going to make. आप इस तरीके से एलएस ऑफ स्ट्रोबिलस ये वाला बना सकते हो ना, स्ट्रोबिलस का सेक्शन, और इसको रेंज दैट्स इट, यू हैव टू मेक दैट इज दैट। तो ये है आपका इक्विसिटम। ओके, सो इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। Any doubt? No, ma'am.